شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ متعدد علاقوں میں ٹرانسفارمرز جلنے سے صارفین کو گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سسٹم پر بجلی کی طلب دن میں 4100 میگا واٹ سے تجاوز کرنے لگی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شاہد سپرا ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم پر آج دن کے اوقات میں بھی بجلی کی ڈیمانڈ 4100 میگا واٹ سے تجاوز کر رہی ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی 4200 میگا واٹ کی جا رہی ہے۔ اس طرح طلب و رسد برابر ہے، بلکہ لیسکو کے پاس سرپلس بجلی موجود ہے۔ تاہم وہ علاقے جہاں بجلی چوری کی شرح زیادہ ہے، وہاں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور رات کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی، اور لوڈ شیڈنگ سے صارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ رات کے اوقات میں یہی بجلی کی ڈیمانڈ 5500 میگا واٹ تک ریکارڈ کی گئی، اور رات کے اوقات میں 600 سے لے کر 700 میگا واٹ لیسکو کو شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیٹ ویو کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمرز جلنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر 8 سے 10 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بجلی بحال نہیں کی جا سکی، اور صارفین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع نے مزید یہ بتایا ہے کہ اس وقت چونکہ 200 اور 100 کے وی اے کے ٹرانسفارمرز کی لیسکو کے سسٹم میں ضرورت ہوتی ہے، تو 200 کے وی اے کے جو ٹرانسفارمرز ہیں ان کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے، جس کے بعد مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر جلنے کی وجہ سے جو بجلی کی بندش کا دورانیہ ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے بھی ہے، اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں رات میں ڈیمیج ہوئے اور ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ تعمیراتی مٹیریل سے پنجاب کا بڑا عوامی منصوبہ متاثر ہو گیا ہے۔ پانی کی سپلائی کا منصوبہ 2000 کی بجائے 1287 دیہات تک محدود کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے، ہمارے ساتھ علی رامے ہیں۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، پنجاب میں رورل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک پروگرام شروع کیا تھا واٹر سپلائی کے حوالے سے، اور یہ ورلڈ بینک کی اس میں خاص طور پر معاونت تھی، ان سے لون لے کر حکومت پنجاب نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے، لیکن 135% اضافہ ہوا مٹیریل کے اندر، مٹیریل اور لاگت کے اندر، تو اس پر اس پروجیکٹ کو کچھ ایک کیپ جو ہے وہ کیا گیا۔ کیپ اس طرح سے کہ 2000 اسکیمیں پہلے اس منصوبے کے تحت شامل کی گئی، لیکن اب ان کی تعداد جو ہے وہ 1287 کر دی گئی، یعنی کہ باقی جو اسکیمیں ہیں وہ نکال دی گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور پروجیکٹ کی جب کاسٹ بڑھ رہی تو اس پر لوکل گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے اگر چاہتی ہے تو مزید ورلڈ بینک سے یہ لون جو ہے وہ لے کے ان منصوبہ جات کو مکمل کر سکتی ہے، جو کہ 2000 اسکیمیں پہلے سے اپروو کی گئی تھیں۔ اب اس میں مختلف دیہات شامل تھے، وہاں پہ صاف پانی کی فراہمی کے منصوبہ جات جو ہے وہ شامل تھے۔ اب اس پر پی این ڈی بورڈ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کچھ اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایک لون پہلے اپروو ہو چکا ہے، اسی لون کے اندر رہتے ہوئے ان اسکیموں کو کو مکمل جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ کم کر دی جائے، یعنی کہ مہنگائی کی وجہ سے، مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے 700 کے قریب جو اسکیمیں ہیں وہ اس اپروو شدہ جو منظور شدہ پروجیکٹ تھا اس میں سے نکال کر صرف 1287 جو اسکیمیں ہیں ان پر ہی کام مکمل جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن مزید لون لینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ وہ حکومت کا منصوبہ تھا جو کہ دیہاتوں میں صاف پانی کی فراہمی کا، لیکن اس میں مہنگائی ہونے کی وجہ سے، مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے حکومت نے مزید لون لینے سے انکار کیا، لیکن جو مختلف اسکیمیں جو دیہاتوں میں شروع کی جانی تھی ان کو کیپ لگا کر اب مختلف ایسی اسکیمیں مختلف ایسے شہروں میں، دیہاتوں میں شروع کی جائیں گی جہاں پر آبادی زیادہ ہوگی، وہاں پر پانی کی فراہمی جو ہے وہ کی جائے گی۔ باقی جو 700 سے زیادہ تحصیلیں یا علاقے ہیں ان کو نکال دیا گیا، ان کو کیپ کر دیا گیا ہے، اور اس کی حکومت سے باقاعدہ منظوری طلب کی جا رہی ہے تاکہ مزید لون نہ لیا جائے، جو موجودہ رقم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ان اسکیموں کو کیا جا سکے۔ جی علی رامی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں میو ہسپتال میں 1 ارب 3 کروڑ سے زائد کی خریداری میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مالی بے ضابطگیوں کا میگا سکینڈل سامنے آیا۔ 1 ارب 3 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 میں زیر بحث ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے راؤت الشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راؤت الشاد۔ بالکل جی، لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال میو ہسپتال، جہاں پر پی ٹی آئی کے دور حکومت کا ایک میگا سکینڈل
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिपोर्ट हुआ है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट की सूरत में आपके बताएं कि माली साल 2021-22 की ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक जो है वो बताया ये गया है कि 1 अरब 3 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई हैं। जरूरी सामान की खरीदारी, जिसमें सर्जिकल आलात, अद्वियात और दीगर साजो सामान शामिल है, इनकी खरीदारी तो की गई, लेकिन पेपरा रूल्स की वायलेशन की गई और ना ही जो है वो टेंडरिंग का अमल शफाफ रखा गया, जिसके नतीजे में इस तरह की माली बेज़ाब्तियां जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चूंकि ये मामला ज़ेर समाअत है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा सेहत से बाकायदा 1 अरब 3 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियों पर जवाब भी तलब किया है और जिम्मेदारों का तयन करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कल इस हवाले से जो है वो समाअत होगी। ताहम उससे कबल आपको बताएं कि जो ऑडिट हुकाम ने ऑडिट पैराज लगाए, उसके मुताबिक मुख्तलिफ जो अशिया थी वो आउट ऑफ टर्न जो है वो खरीदी गई। ताहम खानापुरी के लिए जो है वो बाद में टेंडरिंग का अमल मुकम्मल किया गया, लेकिन अशिया जो है वो पहले खरीदी गई, अदायगियां पहले की गई, जिनमें माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई और इस हवाले से ऑडिट हुकाम को कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ्राहम नहीं किए गए और बार बार ऑडिट हुकाम के तलब करने के बावजूद जो है वो जो मतलूबा दस्तावेजात थी वो नहीं दिखाई गई, जिस पर ये माली बेज़ाब्तियां सामने आई। अब इस केस के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 जो है वो डिसाइड करेगी कि इसका इस हवाले से रिकवरी किस अंदाज में करनी है। अगर ऑडिट पैरा बरकरार रहता है तो फिर उन अफसरान से रिकवरी भी करवाई जाएगी और मुमकिन केस जो है वो 3 माह कबल गफलत में लेडी वेलिंगटन अस्पताल से मुअत्तल की गई डॉक्टर दोबारा एमएस तैनात कर दी गई है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में खातीन मरीजों के ऑपरेशन के मुकाबले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई थी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की बदतरीन गवर्नेंस का एक और जो है वो शाकार सामने आया है कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल से 3 माह कबल बद इंतजामी नाअहली के ऊपर जो है वो ट्रांसफर की गई, मुअत्तल की गई जो एमएस हैं, उनको दोबारा दूसरे अस्पताल का एमएस जो है वो तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर फराह नाम जो है वो एमएस लेडी वेलिंगटन अस्पताल थी जब 28 मार्च को जो है वो एक वीडियो मंजर-ए-आम पे आई थी लेडी वेलिंगटन अस्पताल की, जिसमें गायनिक सी सेक्शन ऑपरेशन के दौरान 2 खवातीन के डॉक्टर्स की मुकाबलेबाजी जारी थी कि कौन पहले जो है वो ये ऑपरेशन करता है और इसकी वीडियो मंजर-ए-आम पे आई थी। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पे आने पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एमएस को ज़िम्मेदार ठहराया था कि उनकी जो इंतजामी गिरफ्त है वो कमज़ोर है। उनकी नाअहली की वजह से इस तरह का जो है वो इक़दाम उठाया गया डॉक्टर्स की जानिब से, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और पीडा एक्ट के तहत जो है वो उनको 1 साल की इंक्रीमेंट रोकने की सजा भी दी गई। लेकिन अब 3 माह के बाद जो है वो डॉक्टर फराह नाम को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने दोबारा एमएस गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा का जो चार्ज है वो सौंप दिया है और जबकि 3 माह कबल उनको नाअहली पे लेडी वेलिंगटन अस्पताल से मुअत्तल करके हटाया गया था और अब 3 माह के बाद उनको दोबारा एक दूसरे टीचिंग अस्पताल का एमएस तैनात कर दिया गया है। जाहिद चौधरी तफसीली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन लाखों असातिज़ा को गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनिंग देगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनैद रियाज हमारे साथ है। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लाखों असातिज़ा को गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनिंग दी जाएगी और ये टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इस हवाले से तमाम स्कूलों के 2-2 असातिज़ा को अहकाम जारी किए गए तो फौरी तौर पर इस ऐप अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि उनको ट्रेनिंग फराहम की जाए। इस हवाले से जनरल स्कूल टीचरों ने जो है तशवीश का इज़हार किया। उनका कहना है कि 65 असातिज़ा को जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग, जबकि हमें जो है वो सामने ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इस हवाले से उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि उन टीचरों को भी जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनका भी मसला हल हो जाए। जी, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट के लिए 77 करोड़ 43 लाख 20 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए हैं। मुकदमात की तफ्तीश के लिए मुख्तस रकम में गुज़श्ता साल की निस्बत नुमाया इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान।
जी बिल्कुल, आपको बताएं पंजाब हुकूमत की जानिब से इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में 77 करोड़ 43 लाख 20 हज़ार रुपए के फंड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। इसमें आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से अक्सर ये शिकायत जो मिलती थी कि उनको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे फराहम नहीं किए जाते और उनको जो है मुद्दई या मुलजिम की जेब से पैसे लगवाने पड़ते हैं और उनके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं होते। इसी बिना के ऊपर हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माली साल जो 63 करोड़ 55 लाख रुपए फंड दिए गए थे उसमें इजाफा करते हुए अब जो है 77 करोड़ 43 लाख रुपए जो है वो फंड रखा गया है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वन में। इसमें आपको पता है तफ्तीशी फंड में रवां साल जो 21.8 फीसद जो है वो इजाफा किया गया है। सूबे में सालाना अगर 8 लाख मुकदमात का इंदराज हो तो फी कस मुकदमा जो है ये 968 रुपए बनते हैं, यानी कि तफ्तीशी को एक मुकदमे की तफ्तीश के लिए जो 988 रुपए जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में हुकूमत की जानिब से जो फंड दिया गया है वो इस हिसाब से बनता है। लेकिन मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें संगीन नौयत के मुकदमात हैं, उसमें 20,000 रुपए तक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्राहम किया जाता है। पुलिस हुकाम के मुताबिक फंड से का मकसद जो थानों में करप्शन और जो माली प्रॉब्लम्स हैं उसका तदारुक है और इसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन विंग को ये माली साल नवा माली साल के अंदर जो नया माली साल है इसमें ये 77 करोड़ रुपए फ्राहम किए जाएंगे ताकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में मिलने वाले पैसों से जो तफ्तीश का म्यार है इसको बेहतर बनाया जा सके। हाई कोर्ट कसूर पुलिस की नाकाश तफ्तीश से नाराज है। डीपीओ कसूर आफ्ताब पहलवान लाहौर हाई कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश हुए। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के में आज चोरी के मुकदमे के मुलजिम की दरख्वास्त मान पर समाअत हुई है जिसमें डीपीओ कसूर आफ्ताब पहलवान पेश हुए हैं और अदालत ने पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर जो है इजहार नाराजगी किया है और डीपीओ को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने चोरी के मुलजिम शाहनवाज की अबूरी दरख्वास्त मान पर समाअत की तो अदालती हुक्म पे डीपीओ कसूर आफ्ताब पहलवान अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने डीपीओ से मुकालमा करते हुए कहा, आफ्ताब पहलवान साहब आपने क्या ये मामला देखा है, आपकी तफ्तीशी ने क्या किया है? तो डीपीओ ने बताया कि जो पहला तफ्तीशी था उसने गलत तफ्तीश की जिसके बाद तफ्तीश तब्दील कर दी गई है और जो बाप बेटे पे चोरी का इल्जाम था इसमें बाप जो है वो बेकसूर है, बेटा जो है इसमें कसूरवार है। जैसे मोहम्मद तारिक नदीम ने डीपीओ से मुकालमा करते हुए कहा कि ये आपके तफ्तीशी आपको तंग कर रहे हैं, जिसपे डीपीओ को कहना था कि ये इनको देख लेंगे और जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने डीपीओ से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि तफ्तीशी है पहले तो मुलजिम के हक में और बाद में यहाँ पे आके मुद्दई के हक में बोलना शुरू कर देते हैं। और मजीद अदालत ने इस पे कहा कि आप इस मामले को देखें, आप सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, आपके पास एसपी भी है और आपको खुद भी इस मामले को देखना चाहिए। पहले ज़िमनी मुलजिम के हक में लिखेगी, बाद में इसको उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो डीपीओ ने कहा कि पहले भी एक ज़िमनी के मामले में अभी तक वो मामला भुगत रहे हैं, इसमें एक डीएसपी भी मुलव्वस था। गालबन उन्होंने जिसपे अदालत ने डीपीओ की सदा पे केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए तफ्तीश मुकम्मल करने की इजाजत दी है। जी मलिक अशरफ, बाउंस चेक केस में नाकिस तफ्तीश पर डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चौधरी भी हाईकोर्ट पेश हुए, इस समाअत के अहवाल भी बताइएगा। जी इस केस में भी आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक नदीम की अदालत में इस केस की समाअत हुई जहाँ पे बाउंस चेक के केस की समाअत थी। तो डीपीओ जो पाकपतन है वो अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने उनसे भी नाकस तफ्तीश पे इजहार नाराजगी किया और कहा कि पहले तो जो आपका तफ्तीशी है वो मुलजिम के हक में लिखते हैं, यहाँ पे आके मुद्दई के साथ मिल जाते हैं। तफ्तीशी जो है एक एक हाथ में 2-2 लड्डू पकड़े हुए हैं, ये इनको कुछ समझाया। आप सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं। तो डीपीओ ने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने जो तफ्तीशी है उसको शोकाज नोटिस जारी किया है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो अदालत ने दोनों फ्री कहने के वकला की दलाल सुनने के बाद और राजीनामे की बुनियाद पे बाउंस चेक के मुलजिम की दरख्वास्त माना जो है वो वापस लेने की बुनियाद पे निपटा दी है। जी मलिक अशरफ तफसीली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं दराज मुकदमा की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद के लिए अदलिया का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। शाहीन अतीक हमारे साथ डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहीन। मुकदमे की दरख्वास्तों को निपटाने के लिए और फौरी अमल दरामद के लिए अदलिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। इसके लिए 2 एडिशनल सेशन जज जो हैं वो सेशन कोर्ट में मुकर्रर किए हैं, जिनमें एडिशनल सेशन जज इक़्तिदार अली ख़ान है और आयशा रशीद हैं। इन दोनों जजों को जो है वो मुकर्रर करते हुए 7 थाने पहले मरहले के अंदर जो है वो दिए हैं और इन थानों का राब्ता जो है वो ऑनलाइन जो है वो कर दिया
दिया गया है। कोई भी अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त जो है वो आएगी तो ये जज हजरात जो होंगे वो फौरी तौर पर ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकते हैं, रिपोर्ट फौरी तौर पर जो है वो तलब जो है वो कर लेंगे। ये पहले मरहले में जो है वो 7 जो है वो थाने दिए गए हैं, जिनमें जनूबी चौनी है, शुमाली चौनी है, बागबानपुरा, मुगलपुरा, शालीमार, गढ़ी शाहू और मॉडल टाउन। ये थाने जो है वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब कोई भी अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त जो है वो इन दोनों जजों के पास आएगी और इन थानों को जो अलाट किया गया है उनका राब्ता फौरी तौर पर जो है वो मुतलका थाने से होगा और रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली जाएगी। अगर ये चीज़ कामयाब हो गई तो तमाम जो इंदराज मुकदमे की दीगर जो कोटे हैं उनको भी ऑनलाइन जो है वो कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने समेत 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। अदालत ने तीनों मुकदमात के ट्रायल की कार्रवाई 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। डिटेल्स बता रहे हैं जमालुद्दीन जमानी जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई दिलाओ गिराव के 3 मुकदमात के जेल ट्रायल की कार्रवाई 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया है, जबकि मुल्जमान के वकला जो है उनको जिरा गवाहान से मुकम्मल करने की हिदायत की है। तारतलू कि इसमें मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात हैं और एक थाना गुलबर्ग का मुकदमा है, जिसमें नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इन 3 मुकदमात का ट्रायल जो है तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है और गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अलबत्ता मुल्जमान के वकला की जानिब से उनके बयानात पर जिरा होना, मुकम्मल होना अभी बाकी है। तो अदालत ने हदायत की है कि आइंदा समाअत पर गवाहान भी पेश हों और मुल्जमान के वकला भी पेश हों। इसमें जेल में अदालती अमले ने मुल्जमान की हाजिरी मुकम्मल की, जबकि जो ज़ेर रस्त मुल्जमान है उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सिफा, चीमा, शाह महमूद कुरैश समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुल्जमान की हाजिरी मुकम्मल की गई, जबकि जो बर्गमार मुल्जमान है वो हाजिरी के लिए पेश हुए। जी जमाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब की अदलिया में डिजिटल गवर्नेंस इस्लाहात के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मजीद 5 डिजिटल सिस्टम्स लॉन्च किए हैं। अदालती कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए नए डिजिटल सिस्टम्स का आगाज हो गया है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और जीडी जुडिशल एंड केस मैनेजमेंट तकरीब में शरीक हुए। अदलिया में डिजिटलाइजेशन का मकसद टेक्नोलॉजी का मौसर और बर वक्त इस्तेमाल है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा क्या मजीद कहती हैं कि सालिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। हाई कोर्ट मेरिट शफाफियत पर मबनी अदालती निज़ाम के लिए पुराज़्म है। डिजिटल इस्लाहात से अदालती दफ्तरी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। मजीद कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार IT लाहौर हाई कोर्ट ने नए डिजिटल सिस्टम्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी।